हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 ऑफ क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, कोड नंबर 406 का यूनिट 2 जो है टूरिज्म बिजनेस पार्ट 1। ये जो चैप्टर है ये आपको टूरिज्म के बारे में, उसके बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सारी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। तो ये वीडियो आपको अंत तक डेफिनेटली देखना है। इसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। ईच पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप भी अपने पास रखिए, किसी बुक या किसी नोटबुक जिसमें आप लिख सकते हैं, वो करते रहिएगा। So let's start with this beautiful video without any further delay. But before starting, I request everyone to please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for no notifications of our videos. So let's get started. तो पहला जो आप पार्ट देख सकते हैं वो है यूनिट ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या लिखा है, ऐसा हमें जानना क्यों जरूरी है, ये सब क्यों पढ़ना है भाई, ये तो आप ही बता सकते हो क्यों पढ़ना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं ना, वी केम टू नो दैट व्हाट इज देयर इनसाइड। once we come to know what is inside this, we can automatically analyze which is important and which is not important, sometimes with our gut feelings and sometimes with guidance. ठीक है? So you have been introduced to the tourism industry in the previous unit. You are now familiar with the concept of tourism and few terms commonly associated with tourism industry such as leisure, tourist, visitor and so on. This unit discusses the growth and evolution of business of tourism industry in India as well as globally. This unit will help you to explain the business of tourism and its growth globally, discuss about major tourism related activities like Grand Tour, show the Silk Route and the Silk Route Tour, identify the industries that act as intermediaries of tourism industry, evaluate the tourism activities in India, list the tour packages available on Indian Railways. देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन्हीं में से ही बनते हैं, तो आप समझ लो कि आपको खुद ही बुक ने क्वेश्चंस बना के दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से लोगे, आप वंस गो थ्रू हो जाओगे पूरे चैप्टर से, आप इसी को अगर क्वेश्चन के हिसाब से लोगे, आप बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको भी बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल आइडिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन चैप्टर पार्ट। ठीक है? इंट्रोडक्शन। The business of tourism is constantly changing and evolving. It keeps on reinventing itself as per the needs and desires of tourists. A number of reasons have been contributed to the evolving nature of tourism, such as curiosity, as human beings to explore the unexplored, our thirst for knowledge, taste, and need for thrill and excitement. ये बात सच है कि ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्यों इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज लोगों की क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स, टुवर्ड डिफरेंट ट्रेडिशंस इंक्रीज हो रही है। हमें भी अच्छा लगता है कि कोरिया में क्या हो रहा है जानने, हमें अच्छा लगता है जापान में क्या हो रहा है जानने के लिए, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ पे क्या नया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, दे ऑल्सो लव टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट इंडिया। तो ये उनको एक व्हाट वी कैन से एन अट्रैक्शन पॉइंट देते हैं कि हाँ भाई मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँ ताकि मैं इसके बारे में जान सकूँ। Along with the human nature, the changes in technology leading to new inventions and discoveries have both facilitated as well as influenced the decisions of tourists. For example, till a few years ago, space travel was considered to be the forte of scientists and astronauts, but now it has become the new frontier for modern tourists. Many private operators have also started offering the experience of space tourism. Future plans include visit to Moon and planet Mars as tourists. Tourism business is no longer restricted to only to the exotic locations on planet Earth. It has now moved on to include the destinations beyond our planet. So this is something which we also are coming to know कि अभी बहुत सारे ऐसे evolutions हो रहे हैं. The science is also evolving in such a way that it is designing the equipments, the things that people can also visit to Mars. एंड अगर आपने बहुत सारे ऐसे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे हमारी जो साइंस है वो चाहती है कि वहाँ पे भी हमारी जो ह्यूमन ग्रोथ है वो हो रही है कि नहीं, वहाँ पे भी ह्यूमन एवोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, वो भी चेक किया जाएगा।
तो वो बहुत बड़ा सा एक हम ये क्या बोलते हैं इसको, एक इन्वेंशन करने की कोशिश में तो है ही, बट सोचो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है कि वो दूसरे प्लैनेट्स में घूमे, उनकी चीजों के बारे में जाने। तो ये धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसके साथ साथ लोगों का मन भी ज्यादा बढ़ रहा है एज अ टूरिस्ट डिफरेंट प्लेस को विजिट करने का। ठीक है, tourism business is no longer restricted to only the exotic locations on planet earth. It has now moved on to include the destinations beyond our planet. यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, it has now moved on to include destinations beyond our planet. ये जो पार्ट है ये बता रहा है कि कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स पे भी हम लोगों को एक मौका मिल रहा है रहने का, जानने का, और साइंस उसमें अभी वर्क ऑन कर रही है। डेफिनेटली हम तुरंत अभी नहीं जा पाएंगे, बट डेफिनेटली एक आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर स्पैन वी कैन डेफिनेटली गो टू दीज प्लेसेस। ठीक है, given below are the logos of only two among many organizations that are offering tourists a chance to become a space tourist: Space Adventures and Virgin. ये जो दोनों ही हैं, आप इनके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो दो वेबसाइट्स दी हैं, आप खुद भी जाके उन्हें सर्च करके अगर आप इंटरेस्टेड हो स्पेस के बारे में जानने के लिए आप देख सकते हो इसको। अदरवाइज ये दोनों लोगो आपको याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट आर द ओनली टू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग और ऑफरिंग टूरिस्ट टू बिकम अ स्पेस टूरिस्ट, दैट इज स्पेस एडवेंचर्स एंड वर्जिन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट. This unit introduces us to the business of tourism from its initial days to the subsequent growth over the decades. The changing face of tourism business, along with a few important tourism events that have been influenced modern tourism business and have helped the tourism industry to evolve over the years, will also be discussed. In this unit, along the global tourism business, you will be introduced to the tourism business scenario in India. ये बेसिकली हमें बिजनेस कैसे होता है टूरिज्म में उसके बारे में बताता है। ये पूरे पैराग्राफ को सम अप करके मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं 2.2 एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ टूरिज्म. It is often said that human beings were always wanderers. Our history books have acquainted us with the nomadic lifestyle of our preceders in the ancient times and constantly in search for means to fulfill their basic requirements of food and shelter. With the passage of time, we learn to fulfill our basic needs from one place to another, thus leading to change in the travel pattern. तो ये हमें भी पता है कि जैसे जैसे ट्रैवल पैटर्न चेंज हुआ, लोगों की बेसिक फुलफिलमेंट्स की वजह से ही लोग इधर से उधर जाते थे. अगर मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ दूं कि पहले लोग जो थे वो लोग जब मैं बोलूँ नोमैड्स के टाइम पे लोग क्या करते थे, अगर आज यहाँ पे खाना मिल रहा है, यहाँ पे पानी है, तो वहीं पे रहा करते थे. अगर आपने बड़े बड़े इंडस वाली सिविलाइजेशन या बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस है उनके बारे में अगर देखा होगा तो वो सारे सिविलाइजेशंस भी पानी के पास ही बसे थे, बिकॉज दे न्यू दैट वाटर वाज अ सोर्स एंड देयर ओनली दे कैन फाइंड फूड एंड शेल्टर. अगर वहां पे पानी सूख जाता था तो वो दूसरी ओर अपने आप को चेंज करके माइग्रेट कर जाते थे. ठीक है, नेक्स्ट. Historical accounts show that the reasons for traveling changed from exploring new lands, exploring for trade, spreading knowledge, spreading religion, to satisfy religious faith, escape famine or drought at their country, and also for military activity to acquire new lands, that is kingdoms. तो धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ, अगर आपको याद होंगे, अगर आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता होगा कि बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज है जो एक्सपैंड हुई ड्यू टू वॉर्स, लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए. बहुत सारी ऐसी भी चीजें हुई जैसे फेमाइन हो, ड्रॉट हो, या फिर बहुत सारे कैलामिटीज हुए जिसकी वजह से भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, अपनी जगह को छोड़ना पड़ा. रिलीजन के स्प्रेड के लिए भी कई लोग गए हैं, बहुत सारे प्रीचर्स गए. प्रीचर्स यानी जो लोग अपने रिलीजन के बारे में अच्छी चीजें जो अध्यात्मता होती है उसको फैलाने के लिए वो लोग बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं, यानी जो स्पिरिचुअलिटी है उसे ऑन द टॉप लेकर गए हैं. इससे लोगों को उस स्पिरिचुअल गॉड के बारे में, उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज स्प्रेड हो पाए, ये प्रीचर्स करते हैं. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देख सको कि सेटिस्फाई रिलीजियस फेथ, कई लोग डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं. अगर आप देखे होंगे लोग हज पे जाते हैं, आपने सुना होगा, लोग गुरुद्वारास जाते हैं, बहुत सारे लोग
डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं, जैसे कि ज्योतिर्लिंग दर्शन हुए, चार धाम दर्शन हुए, तो ये सब भी रिलीजियस फेथ को सेटिस्फाई करने के लिए ही लोग जाते हैं. Still, it is not possible to put an exact date and time when people started traveling or started to participate in tourism activities or tourism industry as we know today was set up. To understand the evolution of the tourism as the industry that we know today, let us start from the very beginning. The travel account of travelers are one of the authentic way of learning about the historical epic journey across countries as well as to understand the social and cultural conditions of that time. तो ऐसे हम भाप नहीं सकते कि कब से लोगों को पता चला कि ट्रैवलिंग करनी है, क्यों ट्रैवलिंग करते थे, ऐसे हम अचानक से कोई अनुमान नहीं लगा सकते. बट अगर हम ट्रैवल डायरीज को पढ़ें, उनकी चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से उनकी जर्नीज हुआ करती थी और क्या क्या कंडीशंस थे उस टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैवल अकाउंट एज गिवन बाय द Megasthenes, the Greek ambassador to the court of Mauryan Emperor Chandragupta Maurya, tells us about the life in the Mauryan court. Written accounts were also given by Fahan, a Chinese traveler in India in the 5th century AD, and Husang Sang, a celebrated Buddhist scholar pilgrim from China who spent 14 years of his life from 1630 to 644 AD in India. यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या होता था, वहां की लाइफस्टाइल कैसी थी, वहां सब कुछ क्या था, इस बारे में अगर आप देखोगे तो मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर हैं, वो उनके बुक में लिखते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था वो कैसा था, वहां की कोर्ट कैसी थी. इवन फैहन जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, वो जब 5th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था, ये सब चीजें उन्होंने अपने बुक्स, अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब वो ट्रैवल करते थे उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे. ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम है, बट फिर भी आप इसे ओवरऑल नॉलेज के लिए यूज कर सकते हो. हाँ, पॉसिबल है कि किसने ये जो फॉर एग्जाम्पल द ट्रैवल अकाउंट एज गिवन बाय मेगास्थनीज, तो किसने जो कौन से ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था, तो मेगास्थनीज. ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू बन सकते हैं, बट चांसेस काफी कम होते हैं. बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में छोटी सी छोटी चीज रहे, बिकॉज जब नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे, ईच एंड एवरी लाइन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. तो अभी से अगर आप आदत डालेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. तो मैं चाहूंगी कि आप ये चीज अंडरलाइन कर लें, फॉर एग्जाम्पल से लेके यहां तक. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. These written accounts confirm the existence of travel across different countries. डेफिनेटली अगर उस टाइम पे वो ट्रैवल नहीं करते, वो लोग एक्सपीरियंस नहीं करते और लिखते नहीं, तो हमें पता नहीं चलता कि ऐसे भी कई कंट्रीज के लोग थे जो हमारे कंट्री विजिट करने आते थे. अगर आप म्यूजियम्स में भी जाओगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा म्यूजियम में भी, तो ऐसे कई चीजें, कई ऐसी चीजें, यानी कि वन टाइप ऑफ सीक्वेंस से द एंटिक्स आर kept with them, or antiques are kept here or in the museum, which were given by the before period times. तो बेसिकली अगर आप देखोगे, म्यूजियम जाओगे, आप देखोगे ध्यान से, वहां पे ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि आप अभी के हमारे मुगल एम्परर्स हुए, ब्रिटिश लोग हुए, उनका तो देखते ही हैं. बट अगर आप बाहर के लोगों का भी वहां पे देखोगे, तो एंटीक्स है जो उन्होंने हमारे यहाँ के किंग को गिफ्ट किया था. ठीक है, यही मैं एक्सप्लेन कर रही थी. ओके, next, along with these written accounts, we also have evidences of travel and interaction between nations, as ships were sailing across oceans and seas and docking at ports of different countries for the purpose of trade. आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में, ये आपके हिस्ट्री के बुक में है, या आपके हिस्ट्री के एग्जाम यानी कि आपके सोशल एग्जाम में आने का 100% चांस रहता है. तो आप इसे अभी से, आपको एक अच्छा मौका मिला है क्योंकि आप इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़ रहे हैं, तो सिल्क रूट के बारे में आप इससे एक अच्छा आइडिया रखेंगे तो आपको हेल्प भी हो जाएगा आपके सोशल साइंस में. ठीक है, we also have account of early empires such as Egyptian, Greek, Roman and Sumerian who have promoted travel not only for business but also for leisure. ये क्वेश्चन आने का चांसेस काफी है कि ऐसे कौन से एम्पायर्स थे जिन्होंने
ट्रैवल को प्रमोट किया था, ना सिर्फ बिजनेस के लिए बट लीजर के लिए, यानी कि इंजॉयमेंट के लिए, उस चीज के लिए भी किस किस ने प्रमोट किया था, तो आप लिखेंगे इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, सुमेरियन, ठीक है. Each one of these countries had some reason that facilitated and helped in promoting leisure travel. For example, Egypt had River Nile, a connecting factor for the entire country. Ships could travel down this river and patron travelers could travel in relatively more comfort than traveling on road. Similarly, the expansion of the Roman Empire meant that travelers had the benefit of common legal system as well as the benefit of proper well laid roads and other modes of connectivity. यानी रोमन एम्पायर हो या इजिप्शियन एम्पायर हो, वहां पर जो रिवर सिस्टम थे वो अच्छे थे, तो इसीलिए वो उनको हेल्प करते थे कहीं ना कहीं पे. जैसे इजिप्शियन में नाइल रिवर था, तो नाइल रिवर काफी उनको हेल्प करता था कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए. दोनों ही जगह पे जो मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी है, प्रॉपर वेल लेड रोड्स है, उन्हीं चीजों की वजह से ही लोग एक से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते थे. Mediterranean region was not the only region in ancient time that promoted travel activities. Historical references reflect on trade activities in Asia, Middle East and Europe are also readily available. The most popular travel and trade route on this time in Asia commonly known as Silk Route. सबसे important question जिसके ऊपर हमेशा MCQ बनेगा ही बनेगा, या फिर एक क्वेश्चन आंसर आएगा ही आएगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर मिड टर्म्स और फॉर योर फाइनल एग्जाम, इवन फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, द सिल्क रूट. सिल्क रूट क्या है? Silk Route, one of the greatest trade routes of the world, was the name given Silk Route by German geographer Ferdinand van Richthofen. देखो नाम काफी डिफिकल्ट है, नो डाउट, याद आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जो चीज डिफिकल्ट होती है एग्जाम में वही पूछा जाता है. हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए तो लक अच्छा होगा, अगर नहीं आया 1 मार्कर या 2 मार्कर में आगे एक्सप्लेन करने के लिए तो नाम लिखना पड़ता है. इट हैज मार्क्स, ठीक है, और 5 मार्कर या 4 मार्कर में आएगा. सो इट गिव्स अ गुड आइडिया to the person who is checking your paper that you have learned the chapter properly, you are well known to the topic and hence you can write down the important things in it. He was the first to coin the term in German language Seidenstraße or Silk Route in 1870. तो ये जो सिल्क रूट है इसे कब कॉइन किया गया था? 1870 में, और उसका पहला नाम जो कि जर्मन लैंग्वेज में क्या था? सेडेनस्ट्रेज. मैं इस चीज को दूसरे कलर में हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी ओर ध्यान जाए. ठीक है. The name of this trade route comes from the most precious commodity that was traded on this route, that is silk. Although it is commonly believed that Silk Route was a single well-traveled trade route, in reality it was a complex network of land and sea trade routes across the Afro-Eurasian landmass that connected East, South and Western Asian with the Mediterranean and European world as well as part of North and East Africa. Afro-Eurasian यानी कि अफ्रीका एंड यूरेशिया, दैट इज अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, इन तीनों के मिलन को हम एफ्रो यूरेशियन लैंडमार्क्स बोलते हैं, जिसमें कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस रूट को स्थापित किया गया था. It was not a well-mapped path, but was actually culturally diverse route spanning across 12,000 kilometers of ancient routes. इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है रूट है मतलब सिर्फ लैंड के थ्रू है, ऐसा नहीं है. इसमें सी रूट प्लस लैंड रूट को इंक्लूड करके इसका नाम रखा गया था. ठीक है. नेक्स्ट, सिल्क, both Chinese and Indian, was one of the most precious commodities of the traders, along with the Indian spices and condiments, precious metals and gems. Other items such as ceramics, glass, ivory, medicinal herbs, exotic animals and livestock were also traded on this route. Livestock यानी कि animals जैसे कि जिन्हें हम रख सकते हैं घर पे. ठीक है. Yet we can say that this route was not just used for trading of commodities, as it also introduced Eastern culture, philosophies, religious beliefs such as Buddhism to the Western world. तो बहुत सारे ईस्टर्न कल्चर के बारे में जो फिलोसफीज है, जो रिलीजियस चीजें हैं, उस चीज को वेस्टर्न वर्ल्ड को बताने के लिए ये रूट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, स्पेशली बुद्धिज्म को. We can say that this Silk Route was the first
to bring east and west closer. ठीक है, so which route was the first to bring the east and west closer? That is the Silk Route. ठीक है, ये है वो सिल्क रूट. अगर आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे नीचे इंडिया है, ऊपर तिब्बत है, यहाँ पे ग्रीस है लेफ्ट साइड में. दिस इज ग्रीस, this is Greece, okay, and here you can see it is Saudi Arabia, Mecca is there, Medina is there. तो इस तरह से जो हम लोगों का सिल्क रूट था उसे बनाया गया. ठीक है, the importance of Silk Route in the global history is well recognized by the United Nations World Tourism Organization, and therefore UNWTO has launched a Silk Road Action Plan in 2010, wherein 24 member countries are coming together to develop this route for the purpose of tourism activity in modern times. ठीक है, तो यानी कि क्योंकि ये रूट इतना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए क्या किया गया कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है UNWTO, उसने सिल्क रोड एक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस किया. इस प्लान के अंडर उन्होंने एक जो 24 मेंबर कंट्रीज है, यानी 24 कंट्रीज जिनके बीच में ये ट्रेड रूट था, उन्हीं कंट्रीज को एक साथ लाने के लिए, एक रूट बनाने के लिए सोचा है, ताकि वापस से सिल्क रूट को जगाया जा सके. उसकी याद में ये किया गया है. ठीक है, An action plan is decided every year so as to promote the Silk Route tourism as well as to promote cities near the Silk Route. ठीक है, next. The Silk Route was one of the aspects of travel in ancient times which included only a small part of Europe. The collapse of Roman Empire and the dark Middle Ages saw Europe go through a period of turmoil, popularly referred to as Dark Ages, till the age of Renaissance, or the age of New Beginning. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया पूरा, तो जो यूरोप है उसने बहुत सारी टर्मोइल देखी, बहुत सारी ऊंच नीच देखी, जिसके वजह से उनके वहां पे बहुत बुरा हाल था. उसे डार्क मिडिल एज कहा गया. बट जब फिर से नया एक रिनाइसेंस आया, रिनाइसेंस मतलब ही है एज ऑफ न्यू बिगनिंग, तब वहां पे धीरे धीरे ठीक होने लगा. ठीक है, विद दिस आज के वीडियो को हम एंड करते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे द ग्रैंड टूर और ग्रैंड टूर. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि रिनाइसेंस क्या था, एज ऑफ न्यू बिगनिंग क्या होती है, ग्रैंड टूर क्या है. इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल.